Hello student, now we are going to solve a question self-practice 5F in this video, and this exercise is also related to the division of polynomials by a monomials. कहने का मतलब ये है कि एक पोलिनोमियल्स का एक मोनोमियल्स से कैसे डिवीजन किया जाता है वो इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में हम लोग सीखेंगे। तो क्वेश्चन है डिवाइड, यानी कि क्या करना है, डिवाइड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन 7a + 7b / 7, यानी कि 7a + 7b को डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 7 से डिवाइड करना है। तो सी क्वेश्चन फर्स्ट ए 7a + 7b / 7, इसका मतलब ये है कि 7a + 7b में डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 7 से। कहने का मतलब ये है कि जो 7a + 7b है वो आपका क्या है, डिविडेंट है, और 7 क्या है, डिवाइजर है। तो डिवाइजर से डिविडेंट में भाग करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 7a + 7b और अपान हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा? अपान 7। अब आप देख रहे हैं 7, यहाँ देखिए प्लस के इधर एक टर्म है और प्लस के उधर एक टर्म है, दो टर्म है। तो दोनों टर्म से 7 को क्या किया जा सकता है? कॉमन किया जा सकता है। 7 को कर लेंगे कॉमन, बचेगा आपका a + b और अपान क्या हो जाएगा 7, और 7 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। नाउ यू गेट a + b एंड दिस इज योर आंसर। a + b इज अ quotient. a + b is a quotient and this is your correct answer. And see another question, first b ax + ay / a, it's mean ax + ay is a dividend and a is divisor. It's mean you have to divide ax + ay by a. Now see again the blackboard. First b given that ax + ay by a, it's mean here ax + ay is a dividend and a is a divisor. So you can write as ax + ay upon a, and numerator you can let common a as a into x + y upon a, and now a will be cancelled and you get a quotient x + y. This is your answer. I hope that you will be understand and solve another question like as 1c. 1c question number first, part C, 6y - 2 / 2. Here you can see that 6y - 2 is a dividend and 2 is a divisor. So you can write as 6y - 2 upon 2, and in numerator you can see that 2 is a number that which you will be common, यानी कि it's mean you can write as 2 into 2 3 = 6 into y - 2 1 = 2 upon 2 will be cancelled and you get a quotient 3y - 1. This is your answer. And like this question you can solve also first D. And now we are going to solve question number second A. 8y - 8 by -8, it means 8y - 8 is a divisor and it is a dividend and it is a divisor. So you can solve as question number 2a. Question number 2a 8y - 8 by -8. Here you can see that 8y - 8 is a dividend and -8 is a divisor, and you know in division and dividend you know that in divide form you can write as dividend write in upper form and dividend write in लोअर फॉर्म। कहने का मतलब यह है कि जो आपका डिविडेंड होता है उसको ऊपर लिखते हैं और जो आपका डिवाइजर होता है वो आपको क्या लिखा जाता है? नीचे लिखा जाता है। तो यू कैन राइट एज 8y - 8 upon 8. Now you can let 8 common in numerator. It means you can write as 8 into y - 1 upon
here -8 upon -8. 8 will be cancelled and minus multiply in y -1. It is positive and it is minus, plus minus y, and it is minus, it is minus, it is also minus plus 1. You can write as 1 minus y. और आप ऐसा भी आप लिख सकते हैं, यहाँ माइनस को कर लेंगे कॉमन, ये हो जाएगा आपको y -1 ही ऐसे रह जाए। ये हो गया आपका आंसर। आंसर कितना है? माइनस y -1, माइनस है कॉमन में और एक ब्रैकेट में y -1, और यहाँ क्या है 1 माइनस y है, क्या है 1 माइनस y है। तो आप इसी तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। फिर आते हैं सेकंड बी पे, अनदर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड बी देखिए, सेकंड बी देखें। Given that 6x power 4 plus 3x cube plus 3x square by 3x square. Here dividend is 6x power 4 plus 3x cube plus 3x square and divisor is 3x square. So first write question 6x power 4 plus 3x cube plus 3x square by 3x square, and you know that you can write is as 6x power 4 minus 3x cube plus 3x square upon 3x square. In numerator you can see that 3 is a number that which divide 6 and 3 and also its last 3. कहने का मतलब यह है कि ऊपर वाले में यानी कि जो आपका न्यूमरेटर है उसमें आप देख पा रहे हैं कि 3 एक ऐसा नंबर है जो 6 को भी डिवाइड कर देगा, इस 3 को भी डिवाइड कर देगा और लास्ट वाले 3 को भी डिवाइड कर देगा। तो इसका मतलब यह है कि 3 को कॉमन किया जा सकता है, 3 को कॉमन कर लेंगे। फिर आते हैं वेरिएबल्स पे। वेरिएबल्स यहाँ क्या है, x पावर 4 है, x क्यूब है और यहाँ क्या है x स्क्वायर है। तो जब ऐसा सिचुएशन होता है तो वेरिएबल्स को जो कॉमन किया जाता है वो सबसे लोवेस्ट पावर वाले को टर्म किया जाता है। तो सबसे लोवेस्ट जो आपका पावर है वो कितना x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। इसका मतलब ये है कि 3x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। और कॉमन करने का मतलब होता है डिवाइड करना। तो 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो आपका जो क्वोटिएंट आएगा वो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। 3 2 6। x पावर 4 से अगर आप x स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे, कहने का मतलब डिवाइड करते हैं तो डिवाइड में के फॉर्म में फार्मूला क्या होता है, माइनस में हो जाता है। इसका मतलब ये है कि 4 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, x पावर 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस से 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा और x क्यूब में x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो केवल x मिलेगा। और यहाँ देखिए ये आपका क्या है, प्लस है तो प्लस हो जाएगा। 3 से 3 में डिवाइड करेंगे तो कुछ नहीं, और x स्क्वायर से x स्क्वायर में डिवाइड करेंगे तो भी कुछ नहीं, यानी कि 1 मिलेगा। कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अपान क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर विल बी कैंसल एंड यू गेट अ क्वोटिएंट 3 into x स्क्वायर माइनस, इसको आप लिख सकते हो केवल x लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, केवल x। तो 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, क्वोटिएंट इज 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 एंड दिस इज योर आंसर। 2x स्क्वायर माइनस x, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 एंड you can also solve it like as C and D and I tell you another question 2C भी बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2C, x पावर 8 माइनस 20x पावर 5 बाई 5x क्यूब y स्क्वायर, y क्यूब है। एंड यू कैन सी आल्सो हियर डिविडेंड इज 25x पावर 8 माइनस 20x पावर 5 एंड डिवाइजर इज 5x क्यूब y क्यूब एंड सो यू कैन राइट एज 25x पावर 8 माइनस 20x पावर 5 अपॉन 5x क्यूब y क्यूब upon 5x cube y cube and in numerator you can see that 5 is a number which divide 25 and also 20।
So you can write, you can let 5 as in form of common. कहने का मतलब ये है कि 5 को आप कॉमन ले सकते हैं. एंड इन वेरिएबल्स कॉमन, इफ यू कॉमन इन वेरिएबल इफ यू कॉमन देन यू हैव टू कॉमन लोएस्ट टर्म ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि जो आपका वेरिएबल्स है उसके लोएस्ट टर्म को क्या करेंगे, कॉमन करेंगे. तो यहाँ पर आपका लोएस्ट टर्म कितना है, x पावर 5 है. इसको क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे. क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे. कॉमन कर लेते हैं. तो ये हो गया. अब यहाँ से 25 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 5 5 जा 25, और x पावर 8 में x पावर 5 से डिवाइड करेंगे तो x पावर 3 आपको मिलेगा. और यहाँ माइनस से माइनस हो जाएगा, 5 4 जा 20 हो जाएगा, और x पावर 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. अपान आ जाएगा 5x क्यूब y क्यूब, और 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. और x क्यूब x को क्या कर देगा, कैंसिल. कैंसिल का मतलब ये है कि 5 से 3 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो अभी आपके पास में x स्क्वायर बचा है. क्या बचा, x स्क्वायर. तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपान y क्यूब. ये x स्क्वायर और यहाँ y क्यूब बचा, और ये आपका क्या है 5x क्यूब माइनस 4. दिस इज योर आंसर, 5x क्यूब माइनस 4. फिर आते हैं थर्ड क्वेश्चन में. कह रहे हैं एक्सप्रेस ईच क्वोटिएंट एज अ सम, यानी कि प्रत्येक जो क्वोटिएंट है उसको क्या करना है, उस किस में चेंज करना है, सम के फॉर्म में चेंज करना है. यानी कि ऐसा ही ब्रैकेट ले आना है. ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थर्ड ए है. 35 a पावर 5 प्लस 28 a पावर 4 b स्क्वायर माइनस 14 a क्यूब b क्यूब अपान माइनस 7 a स्क्वायर. अब न्यूमरेटर में आप देख रहे हैं कि 7 को क्या किया जा सकता है, कॉमन किया जा सकता है. 7 को क्या किया जा सकता है, कॉमन. क्यों, क्योंकि 7 के टेबल में 35 भी आता है, 7 के टेबल में 28 भी आता है, और 7 के टेबल में 14 भी आपको मिलता है. तो 7 को क्या कर लेंगे, कॉमन. अब आते हैं वेरिएबल. यहाँ a पावर 5 है, यहाँ a पावर 4 है, यहाँ a क्यूब है. यानी कि जो सबसे छोटा टर्म है वो कितना है, a पावर क्यूब है. इसको कॉमन किया जा सकता है. लेकिन अगर a पावर क्यूब को हम कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ हमारे पास जो डिवाइजर है जिससे हमको भाग करना है, वहाँ a पावर कितना है, 2 ही है. कितना है, a पावर 2 ही है. तो हमें आवश्यकता है सिर्फ कॉमन करने की a पावर 2 की, ना कि a पावर 3 की. तो यहाँ कॉमन कर लेंगे ऊपर वाले में 7a स्क्वायर कॉमन कर लेंगे. क्या कॉमन कर लेंगे, 7a स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 7 5 जा 35, और a 5 में a स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो a पावर क्यूब आ जाएगा. ये आपका प्लस 7 4 जा 28, और a स्क्वायर का a 4 में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बचेगा, और ये b स्क्वायर है. ये आपका माइनस 7 2 जा 14, और यहाँ बचेगा a b क्यूब बचेगा. क्या बचेगा, a b क्यूब अपान क्या हो जाएगा, माइनस 7a स्क्वायर. माइनस 7 कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. ये जो माइनस a इस माइनस को यहाँ ऐसे कर देंगे तो माइनस 5a क्यूब और प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2a b क्यूब. या तो यहीं पर छोड़ देंगे, आपका आंसर हो जाएगा. या तो क्या करिएगा, इस माइनस का इस पूरे ब्रैकेट में क्या करा दीजिएगा, मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, वो भी आपका आंसर हो जाएगा. तो इसी तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना. फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. क्या है, इवेल्युएट करना है, यानी कि मान ज्ञात करना है. क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है. तो कैसे क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 4. x अपान y, और इधर दिया है when x प्लस y अपान y इक्वल क्या है, 21 है. देखिए x प्लस y अपान y ऐसे राइट कर लेते हैं. x प्लस y अपान y इक्वल 21. इतना आपको क्या दिया गया है, क्या है, ये दिया गया. और इसी से x अपान y का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है. ये x प्लस वाई अपान वाई इक्वल टू 28, इसका वैल्यू क्या है, दिया है, इतना दिया है. और इससे क्या करना है, x प्लस x बाई वाई का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है. तो क्या करिएगा, इस y को
डिवाइड कर दीजिएगा। डिवाइड करने का मतलब ये कि बांट देना है। बांटने का मतलब ये कि जैसे ये जो y है, ये जो y है वो x के अपान पे भी है और प्लस y अपान y पर भी है, इक्वल टू 21, ऐसे आप लिख सकते हो। ये जो y, जैसे आप एलसीएम लेते हैं ना, एलसीएम के पहले का फॉर्म है ये एलसीएम जब हो गया तब ये हो गया, और जो ये एलसीएम के पहले का फॉर्म है। अब यहाँ y देखिए सेम है, तो इसको एक बार ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर वाले को x प्लस वाई ऐसे ऐड कर लेते हैं ना, तो वही यह फॉर्म लिखा गया है। तो क्या करेंगे आप देखिए, इतने का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, तो ऐसे करेंगे x अपान वाई, और ये कैंसिल हो जाएगा ना, ये भी ऊपर है ये भी ऊपर है, तो ये आपका +1 हो जाएगा, इक्वल टू 21 हो जाएगा। तो क्या करेगा, x प्लस वाई को वही x अपान वाई को यहीं रोकिएगा और 1 को उधर ट्रांसफर कर दीजिएगा, तो 21 माइनस 1 अब इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और यही तो वैल्यू फाइंड आउट करना था x अपान वाई का, यही हो गया आंसर, यानी कि x अपान वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा। और इसी क्वेश्चन के साथ में ये आपका जो सेल्फ प्रैक्टिस 5 है वो आपका कंप्लीट हो गया। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेल्फ प्रैक्टिस 5 के साथ में, तब तक के लिए आप लोग मेहनत से पढ़िएगा। ओके, थैंक्स।